بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف شمسی اور حروف قمری کس کس کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے؟ جلدی سے بتا دیں ایک دفعہ، کوئی ایک طالبہ ریویژن کر لے پھر آگے چلتے ہیں. کون بتائے گا حروف شمسی اور حروف قمری کیا ہوتا ہے؟ جلدی جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عائشہ. حروف قمری جو ہیں وہ عائشہ آواز تو نہیں آ رہی مجھے. اس میں نام ظاہر کیا جاتا ہے. جی جی صحیح. قمری 14 ہیں اور حروف شمسی 14 ہیں. کسے کہتے ہیں لام تعریف؟ ذرا دوبارہ دہرائیں، مجھے آواز نہیں آئی آپ. اتنا ٹائم نہیں لگاتے حروف عائشہ، جلدی جلدی قمری بولیں. حروف قمری 14 ہیں اور حروف شمسی بھی 14 ہیں. حروف قمری میں الف جو لام تعریف ہوتا ہے اس کو اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اور حروف شمسی میں ملا دیا جاتا ہے. اور یہ جو الف لام ہوتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں اور یہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے الف لام. ٹھیک ہے صحیح. حروف قمری جو ہے 14 ہیں وہ الف با غین ح جیم کاف واو ح فا عین قاف یا میم ہا اور ان کا مجموعہ ادخل حج کا وقت اقیب ہو کہلاتا ہے، یعنی تو بہت اپنے حج کو اور تو ڈر اپنے بڑھاپے سے. شاباش. اور حروف شمسی میں تا تا سا بس دال یہ بتانے کی دال ضرورت نہیں ہے، را. بس 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 کافی. کیونکہ جو حروف قمری سے بچ جاتے ہیں اور وہ ہمارے اس میں آ جاتے ہیں حروف شمسی میں آ جاتے ہیں. صحیح. چلے اچھا، اجتماع الساکنین کا قاعدہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں آج، یا آج یہ رہنے دیتے ہیں. آج ہم پڑھتے ہیں نون ساکن کا پہلا قاعدہ. یہ ساری مدات انشاءاللہ پڑھیں گے آپ نے بھی، لیکن پہلے کیونکہ نون ساکن اور میم ساکن کے احکامات بہت سارے ہیں اور یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا قاعدہ ہے، تو پہلے ہم نون ساکن اور میم ساکن کے احکامات. پیج نمبر 54 نکال لیں آپ سب اپنے اپنے قاعدے میں. ٹھیک ہے، پیج نمبر 54 قواعد التجوید. زینوا القرآن بأصواتکم، زینوا القرآن بأصواتکم، زینو تم سجاؤ، القرآن قرآن مجید کو، بأصواتکم اپنی آوازوں کے ساتھ. صوت واحد آواز اور اصوات جمع آوازیں یا آوازوں. زینوا القرآن بأصواتکم صوت موٹا، بأصواتکم میم میں آواز بولی بند، موٹے دونوں اور دونوں مل جائیں گے. تم سجاؤ قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ. الجزء الثالث فی احکام المیم والنون. تیسرا حصہ میم اور نون ساکن کے احکام کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغنۃ الواجبۃ، الغنۃ الواجبۃ، الغنۃ الواجبۃ، غنہ واجبہ، غنہ واجبہ. ٹھیک ہے، عربی میں پڑھیں گے تو لام الف لام ملا کر اور دونوں کو ملا دیا جائے گا الفاظ کو، اور وہ اردو میں بولیں گے غنہ واجبہ. اچھا جی، کیا ہے غنہ واجبہ؟ غنہ کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ غنہ واجبہ یعنی اس کو ادا کرنا واجب کب بن جاتا ہے؟
वही सौतुल लज़ीज़ यखरुजु मिनल खैशूमी व मिक़दारुहा अलिफुन, वही सौतुल लज़ीज़ यखरुजु, लज़ीज़ यखरुजु, जब तनवीन को या में मिलाएंगे तो इस तरह आवाज पैदा होगी, लज़ीज़ यखरुजु, एक अलिफ के बराबर इसमें भी वन्ना करके पढ़ेंगी। हेडिंग को भी वैसे ही पढ़ा करें जैसे बताई जाती है। वही या सऊतुन, और वो वन्ना वाजिबा आवाज है, लज़ीज़ुन एक लजीज आवाज, नर्म आवाज, यखरुजु वो निकलती है, मिनल खैशूमी खैशूम से यानी नाक की नर्म हड्डी से, नाक के बांसे से, अक्सल अंत से, व मिक़दारुहा और उसकी मिक़दार, अलिफुन एक अलिफ के बराबर है। ठीक है, चले जी अब इसको पढ़ते हैं आगे। अल क़ाइदतु पढ़ने का, वही सौतुल लज़ीज़ुन यखरुजु, वही सौतुल लज़ीज़ुन यखरुजु, ता को जब ला में मिलाएंगे तनवीन की आवाज खत्म कर देंगे। अब माशाल्लाह आवाज शुरू हो गए तो धीरे धीरे आप सारी चीजें, जब आपको लगता है ना कि ये क्यों किया, लाम क्यों नहीं पढ़ रहे, नून क्यों नहीं पढ़ रहे, मोटा क्यों पढ़ रहे हैं, बारीक क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें अब आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो सौतुल जब तनवीन के बाद लाम आता है तो नून की आवाज खत्म करके हर से डायरेक्ट लाम को मिला देते हैं, तो सौतुल बीच में नून की कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। लज़ीज़ुन यखरुजु, यहाँ पर नून की आवाज बाकी रहेगी, ये इदगाम नाक़िस का कायदा। और इसका मतलब है कि और वो आवाज यानी और वो गुन्ना वाजिबा नर्म आवाज है, निकलती है खैशूम से और उसकी मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। ठीक है, अब आगे चले, क्लियर है सबको? अल क़ाइदतु पढ़ने का तरीका, हमजा पढ़ी जबर, मीम अव्वल साकिन अम, मीम सानी मीम पढ़ी जबर म, अम, हमजा पढ़ी जेर, मीम अव्वल साकिन इम, मीम सानी मीम पढ़ी जबर म, इम। क्या कर रहे हैं हम इसमें खास चीज जिसको आप कहेंगे कि ये गुन्ना वाजिबा है, अम इम, इसमें क्या खासियत है कि ये गुन्ना वाजिबा बन रही है? नाक में आवाज लेके जा रहे हैं तो इसलिए ये गुन्ना वाजिबा बन रही है। शाबाश, ठीक है ना। जब मीम, अच्छा शद वाले तमाम हुरूफ के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ये दो बार अदा होते हैं, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक। ये क्लियर है सबको कि शद वाले हुरूफ को दो बार पढ़ते हैं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक। तो जब अम्मा पढ़ेंगे ना तो जो साकिन होगा ना, पहला साकिन, उसके ऊपर रुक जाएंगे और वहां पे करेंगे गुन्ना। ठीक है, एक अलिफ के बराबर, अम्मा अम्मा, इस तरह। ये जो आवाज हम रोक के निकाल रहे हैं इसको कहेंगे क्या? गुन्ना वाजिबा। आगे हमजा बड़ी जबर, मीम अव्वल साकिन अम, मीम सानी मीम दो पेश मुन, मुन पहला, इसकी तीसरे से पहले वाला नहीं पढ़ा शायद मैंने। हमजा सीधा पेश, मीम अव्वल साकिन मीम सानी मीम बड़ी जबर म। अच्छा, अल कायदा तो में वक्फ नहीं करते, ये याद रखना है आप लोगों को हमेशा। हमजा पढ़ी जबर, नून अव्वल साकिन अन, नून सानी नून पढ़ी जबर न, अन। हमजा पढ़ी जेर, नून अव्वल साकिन इन, नून सानी नून पढ़ी जबर न, इन। हमजा सीधा पेश, नून अव्वल साकिन उन, नून सानी नून पढ़ी जबर न, उन। हमजा पढ़ी जबर, नून अव्वल साकिन अन, नून सानी नून दो पेश नून, अन नून, अन नून। ठीक है, वल इजरा और कायदे को जारी करना, आइन पढ़ी जबर, मीम अव्वल साकिन अम, मीम सानी मीम पढ़ी जबर म, अम, वक्फ अम,
شد ہے, شد والے حرف کو وقف کرنے میں آواز خیال رکھنا ہے کہ جیسے شد والے حروف میں آواز 2 بار آتی ہے اس کی وقت بھی قدرے سختی سے ہوتی ہے. سا سیدھا پیش, میم اول ساکن سوم, میم ثانی میم پڑی زبر ما, سوم, وقف سوم, فا پڑی زبر فا, سا پڑی زبر, میم اول ساکن سم, فسم, میم ثانی میم پڑی زبر ما, فسم, وقف فسم. صاد سیدھا پیش, میم اول ساکن سم, میم ثانی میم 2 پیش من, سم من, وقف سم. ہا پڑی زبر ہ, لام سیدھا پیش, میم اول ساکن لم, ہلم, میم ثانی میم پڑی زبر ما, ہلم, وقف ہلم. فا پڑی زبر ف, سا پڑی زبر, میم اول ساکن سم, فسم, میم ثانی میم پڑی زبر ما, فسم, وقف فسم. حمزہ سیدھا پیش, میم اول ساکن میم ثانی میم پڑی زبر ما, تا 2 زبر تن, امتن, وقف امہ. ہا کی آواز واضح, امہ. غین سیدھا پیش, غین, غین سیدھا پیش, میم اول ساکن غم, میم ثانی میم پڑی زبر ما, غم, تا 2 زبر تن, غمتن, وقف غمہ. لام پڑی زبر, میم اول ساکن لم, میم ثانی میم پڑی زبر الف ما, لما, وقف لما. لما نہیں کرنا, لمبا ہو جائے گا زیادہ, ٹھیک ہے. لما بھی نہیں پڑھنا, چھوٹا ہو جائے گا. پورا منہ کھول کے ایک الف کے برابر, لما. پیچھے اوپر دیکھیے, لما, لما. فرق ہے دونوں میں, یہ فرق آپ کو بھی رکھنا ہے. بڑی حرکات یعنی حرکات ثلاثہ چھوٹی اور حروف مدات ایک الف کے برابر مکمل. کل مجھے کسی نے بتایا کہ حروف مدات کی مقدار 3 الف کے برابر ہوتی ہے. کسی نے مجھے بتایا تھا, یاد نہیں آ رہا مجھے نام, مریموں میں سے کوئی مریم تھی شاید, یا شاید کوئی اور. تو کتنی مقدار ہوتی ہے, جو شاید سماویہ نے بتایا تھا حروف مدہ کی مقدار, میں نے بتایا تھا سماویہ. تو ایک الف, تو یہ 3 الف کے برابر کس صورت میں ہوتی ہے؟ دیکھیں یہاں سے جو یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی, یہ دراصل پتہ ہے آپ کو کیا سمجھاتی ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی کنفیوژن کہ اب آپ کو یہ تو یاد ہے کہ 3 الف کے برابر مقدار ہوتی ہے حروف مدہ کی, لیکن کب ہوتی ہے یہ ذہن سے نکل گیا. اس کا مطلب ہے کہ چیزیں دھیرے دھیرے ذہنوں میں جا رہی ہیں. کچھ کبھی کبھی یاد رہ جاتا ہے, کچھ کبھی کبھی بھول جاتا ہے. دہرائی کا عمل ہماری چیزوں کو واپس, ہماری یادداشت کو واپس لے آتا ہے, پریکٹس کی ہو جاتی ہے, اس لیے دہرائی بار بار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کون بتائے گا کہ الف مدہ کا جو وقف ہے وہ 3 الف کے برابر کس صورت میں ہو جاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا, میں دیکھوں کس کس کو آتا ہے. کس کس کو پتا ہے یہ بات؟ آمنہ اشرت کو پتا ہے, اور حنا فاطمہ کو پتا ہے, رضیہ اختر کو پتا ہے, اور اچھا ارم کو بھی پتا ہے, شائستہ کو بھی پتا ہے, گڈ. اور باقیوں کو نہیں پتا, عائشہ کو نہیں پتا کہ کب وقف ہو جاتا ہے 3 الف کے برابر. بشرا کو بھی پتا ہے. جی چلیں بشرا بتائیں گی. بشرا مائک کھولو گی تو بتاؤ گے نا بیٹا, جلدی سے آ جاؤ. تو پتا ہونے کا کیا فائدہ جب مائک ہی نہیں کھل رہا ہے. چلے آمنہ اشرت آپ بتا دیں. ابھی یہ وقت کی صورت میں 3 الف کے برابر ہوتے ہیں. اب یہ صبح ہی بتائیں گی کہ کون سے وقت کی صورت میں.
वही आप बताएं, इस बात को और क्लियर करें. सही, बिल्कुल. जब अलिफ मद्दा से पहले शद आ जाए तो उस सूरत में वक्फ करते हुए 3 अलिफ के बराबर. अलिफ मद्दा से पहले शद आ जाए. शद जी नहीं, अलिफ मद्दा से पहले वाली तो कोई भी चीज नहीं है. जो भी चीज है वो बाद में है. जितने भी मदाद है ना उनके कवायद में हुरूफ मद्दा के बाद ही कोई चीज होती है, तो उसमें कायदा बनता है. ठीक है, बाद में साकिन आ जाए तो. शाबाश. जब अलिफ मद्दा के बाद साकिन आ जाए, शद नहीं, साकिन आ जाए. समझ आ गई बात? यानी अलिफ मद्दा के बाद वाला हर्फ जब साकिन करते हैं उस वक्त 3 अलिफ के बराबर हरकत पैदा होती है. यानी अगर लम्मा के बाद नून लगा दे, फर्ज करें, वैसे लगता कभी भी नहीं है, जैसे लम्मान, अब यहाँ पे कोई साकिन हर्फ होता तो हम यहाँ पे क्या करते, 3 अलिफ के बराबर पढ़ते हैं. लेकिन सीधा सीधा जब लम्मा पढ़ना है तो कितना बड़ा पढ़ना है, लम्मा. बस एक अलिफ, एक उंगली खोलनी है, बस, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है. आइन पढ़ी जबर, मीम अव्वल साकिन काम, मीम सानी मीम पढ़ी जबर अलिफ मा, अम्मा, वक्फ अम्मा. अच्छा, ये हुरूफ मद्दात का वक्फ भी ऐसे ही रहता है क्योंकि ये दरअसल वक्फ ही है साकिन की सूरत. फा पढ़ी जबर फ, लाम पढ़ी जबर, मीम अव्वल साकिन लम, फलम, मीम सानी मीम पढ़ी जबर अलिफ मा, फलम्मा, वक्फ फलम्मा. फा पढ़ी जबर फ, हमजा पढ़ी जबर, मीम अव्वल साकिन फअम, मीम सानी मीम पढ़ी जबर अलिफ मा, फअम्मा. अच्छा, फअम में अ वाज़े होना चाहिए. फअम, फम्मा नहीं, क्या कोई भी इस तरह फम्मा नहीं पड़ेगा इसको. हमजा की अपनी एक आवाज, उसका अपना एक मखरज है, वो बाकी रहना चाहिए. फअम्मा. मीम सीधा पेश मु, सीन पढ़ी जबर, मीम अव्वल साकिन सम, मुसम, मीम सानी मीम दो जबर मन, मुसम्मन, वक्फ मुसम्मा. दो जबर का वक्फ कैसे करते हैं, अलिफ के साथ. ये आप पढ़ चुके हैं ना कायदे में. मुसम्मन, वक्फ मुसम्मा. हमजा पढ़ी जबर अ, हमजा पढ़ी जेर, मीम अव्वल साकिन इम, इम, मीम सानी मीम पढ़ी जबर म, इम, ता दो जबर तन, इम्मतन. वक्फ हा की सूरत में इम्मह, इम्मह, ये वक्फ होगा. मीम सीधा पेश मु, हा पढ़ी जबर, मीम अव्वल साकिन हम, मुहम, मीम सानी मीम पढ़ी जबर म, मुहम्म, दाल दो पेश दुन, मुहम्मदुन, वक्फ मुहम्मद. हमजा पढ़ी जेर, नून अव्वल साकिन इन, नून सानी नून पढ़ी जबर अलिफ ना, इन्ना, वक्फ इन्ना. हमजा पढ़ी जेर, नून अव्वल साकिन इन, नून सानी नून पढ़ी जबर ना, इन्ना, नून पढ़ी जबर अलिफ ना, इन्नना, वक्फ इन्नना. हमजा पढ़ी जेर, नून अव्वल साकिन इन, नून सानी नून पढ़ी जेर, या साकिन नी, इन्नी. पता नहीं मैं गुन्ना ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मेरा अपना भी गुन्ना कमजोर है. आप लोग अगर मुझे टोक दें अगर मैं ना करूँ सही. ठीक है. इन्ननी, वक्फ इन्ननी. आइन पढ़ी जबर, नून अव्वल साकिन अन, नून सानी नून पढ़ी जबर अलिफ ना, अन्ना, वक्फ अन्ना. मीम पढ़ी जेर, नून अव्वल साकिन निन. ना है बाजी, जी इन जेर है. ये मैंने मीम पढ़ी जबर पढ़ा है. आपने जबर पढ़ लिया था बाजी गलती से. अच्छा, जज़ाकल्लाह. मीम पढ़ी जेर, नून अव्वल साकिन मिन, नून सानी नून पढ़ी जबर अलिफ ना, मिन्ना, वक्फ मिन्ना. आइन पढ़ी जबर, नून अव्वल साकिन अन, नून सानी नून पढ़ी जेर, या साकिन नी, अन्नी, वक्फ अन्नी. तो जो नून और मीम पे शद है वो बस ठहरना है एक अलिफ के बराबर, इसका ध्यान करना है.
मीम बड़ी जेर, नून अव्वल साकिन मिन, नून सानी नून बड़ी जेर, या साकिन नी, मिन्नी, वक्फ मिन्नी, हमजा बड़ी जेर, नून अव्वल साकिन इन, नून सानी नून बड़ी जबर न, इन, हा उल्टा पेश हु, इन्नहु, वक्फ इन्ना, हमजा बड़ी जेर, नून अव्वल साकिन इन, नून सानी नून बड़ी जबर न, इन, हा सीधा पेश हु, इन्नहु, मीम बड़ी जबर अलिफ मा, इन्नहुमा, इन्नहुमा, वक्फ भी कैसे होगा, इन्नहुमा, हमजा बड़ी जेर, नून अव्वल साकिन इन, नून सानी नून बड़ी जबर न, इन, हा सीधा पेश, मीम अव्वल साकिन हुम, इन्नहुम, वक्फ इन्नहुम, मीम की आवाज पर और दोनों मिलाकर बंद कर देने हैं, इन्नहुम, हमजा बड़ी जेर, नून अव्वल, बाकी आपने हा सीधा पेश मीम अव्वल साकिन, हा सीधा पेश मीम साकिन होगा ना खाली। हाँ सीधा पेश मीम साकिन हुम, इन्नहुम, सही। हमजा बड़ी जेर, नून अव्वल साकिन इन, नून सानी नून बड़ी जबर न, इन, काफ बड़ी जबर का, इन्नका, वक्फ इन्नक, हमजा बड़ी जेर, नून अव्वल साकिन इन, नून सानी नून बड़ी जबर न, इन, काफ सीधा पेश कु, इन्नकु, मीम बड़ी जबर अलिफ मा, इन्नकुमा, वक्फ इन्नकुमा, हमजा बड़ी जेर, नून अव्वल साकिन इन, नून सानी नून बड़ी जबर न, इन, काफ सीधा पेश मीम साकिन कुम, इन्नकुम, वक्फ इन्नकुम। अच्छा अब जो है ना आप लोगों को असल में ख्याल किस चीज़ का रखना है, जो कवायद आ रहे हैं उनके साथ आपके जो जितने भी यानी कि हरकत सलासा, ठीक है, और हरकत सलासा के साथ साथ हुरूफ मद्दात, ये दोनों चीजें ना आपकी बैलेंस होनी चाहिए। यानी कहाँ पर हरकत सलासा है, कहाँ पर बड़ी जेर बड़ी जबर सीधा पेश है, और कहाँ पर उसको एक अलग के बराबर कर देना है, यानी कि कहाँ पर खड़ी जबर खड़ी जेर या उल्टा पेश है या हुरूफ मद्दात, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कायम मकाम है इसलिए दोनों कह सकते हैं। इनकी जो मकदारें हैं इनका पूरा पूरा ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे कवायद में कोई ना कोई गड़बड़ आपकी लाजमन हो जाएगी, ठीक है। तो गुन्ना वाजिबा आज आपने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पहला कायदा नून साकिन और मीम साकिन के अहकामात में से। तो इस गुन्ना वाजिबा को पढ़ने के बाद आगे भी आप बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह पढ़ने लगे हैं और आती चली जाएंगी चीजें। तो उसमें आपको करना क्या है, इस पूरे सफर में याद क्या रखना है, जो बेसिक चीजें हैं वो भूलनी नहीं है। मखरज, हुरूफ कलकला, हुरूफ मुस्तालिया, गुन्ना कब करना है, हुरूफ को कितना खींचना है, कौन सी हरकत को कितना बड़ा पढ़ना है, खड़ी और पढ़ी दोनों हरकत, ठीक है। तो ये जो है ना असल आपका ये अब ये टेस्ट शुरू होगा, क्योंकि अब तक तो आपने हरकत सलासा, हुरूफ मद्दात और मखरजी चल रहे थे ना आपकी, अब तक कोई नई चीज तो आई नहीं थी। तो अब ये आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना वो यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। यानी लाजमी है कि मखरज अपनी जगह से अदा हो, लाजमी है मखरज अपनी जगह से अदा हो। जो जो सिफात बता दी गई हैं उन सिफात को मुकम्मल तौर से और अच्छे तरीके से अदा करना, ठीक है। ये कुरान मजीद का हक है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप उसका हक महरूम कर देंगे उसको हक से, तो ये नहीं करना। और साथ साथ हरकत सलासा और हुरूफ मद्दात बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम कवायद पर आ जाते हैं अमूमन ये चीजें हाथों से निकलने लगती हैं, तो दोहराई भी ज़ाहिर है लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि चीजें जितनी बढ़ती चली जाती हैं पीछे से उतना ही भूलते रहते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि अपनी अपनी मालूमात को आप रोजाना जो है ना पीछे का भी एक सफर रिकॉर्ड करके भेजेंगे, सही है, यानी रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे लाजमन। और वो भी मालूमात से भी दरख्वास्त है कि लाजमी इसको इतना तो जरूर सुन लें कि अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी गलती आ रही है तो वो गलती दूर हो जाए। थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होगा सभी को। तो एक सफा पीछे से, यानी आज आप दोहराई में क्या अमल शुरू करेंगी, पहला आपका जो पेज है सफा नंबर 3 है ना, सफा नंबर 3 है ना,
वो जो आपका हुरूफ हिजा है वो पढ़ के भेजेंगे आप, और उसमें सारे मखारिज और कौन से हर्फ को कितना लंबा पढ़ना है वो अदा करना है लाजमी आपको, ठीक है। यानी कि अलिफ, बा, ता, सा, जीम, ये जो हमने इस अंदाज से पढ़ाया था ना आपको, फिर हा, औ, दाल, राल, रॉ, जा, सीन, ये वाला जो है ना, ये कह रही हूँ, ये वाली मेमोरी रिकॉल करनी है और ये वाला पेज रिवाइज करना है, ठीक है। और साथ में गुन्ना वाजिबा का ये वाला सफा तो आपको उस सबक में सुनाना है, उसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे, पूरी रिकॉर्डिंग पूरे सफे की, वो ये नहीं कि एक दो लाइनें, पहले सफे की पूरी रिकॉर्डिंग, गुन्ना वाजिबा ये वाला कायदा आपके असातिज़ा सुनेंगे आपसे, उनकी मर्जी है 2 लाइनें सुने, 3 लाइनें सुने या पूरा पेज सुने, उन्हें जैसे सही लगेगा वो सुनेंगे। और साथ में अब हम पढ़ लेंगे सूरतुन नबा की अगली 2-3 आयत जितनी भी। बाजी की लास्ट वाली लाइन की तर्जुमा बता दें। लास्ट वाली लाइन कुरान मजीद की आयत है, अगर आप ना भी पढ़े तो कोई मसला अब नहीं है, उसमें बस ये लिखा हुआ है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औफू बिल अहदी इन्नल अहद काना मस्ऊला, और तो पूरा करो अपने अहद को। यहाँ पर वैसे पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को वाकई ये भी और इसका तर्जुमा भी, ताकि ये भी रिमाइंड होता रहे कि वह औफू बिल अहदी, कि आप पूरा करें अपने अहदों को, जो वादे आपने किए हैं उनको पूरा करें। इन्नल अहदा, बेशक वादे या जो भी वादा आप करते हैं एक दूसरे से, काना मस्ऊला, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। आ रही बात समझ में? सवाल कौन करेगा? सवाल कहाँ किया जाएगा? अल्लाह ताला से। जी, अल्लाह ताला करेंगे सवाल। और क्या सवाल करेंगे? हम समझते हैं कि हम ना जाए क्लास में, कोई बात नहीं है, थोड़ा काम निपटा लें, ये कर ले वो कर ले, टेस्ट ना दें, कोई हर्ज नहीं है। तो ये सारी चीजें ना आपकी मर्जी पे नहीं है। जब हमने कहा कि हम टेस्ट लेंगे तो आपको टेस्ट देना है, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो ये गलत। किसी की वीडियो खुल गई है, डोंट नो कि किसकी खुली है, बंद कर ले बराबर, मेहरबानी चेक कर तो जी। तो बता ही रही हूँ कि अगर कोई बड़ी वजह हो जाती है तो ठीक है, चले, कोई बड़ी वजह में तो हम मान लेते हैं कि हम जो है वो आपको इजाज़त खुद ही दे देते हैं कि आप ना करें और ना दें टेस्ट, या कोई भी अगर ऐसी चीज़ है तो आपकी बचत हो जाती है। लेकिन आप बगैर बताए, बगैर इत्तला दिए, बगैर कोई जवाब पेश किए कोई टेस्ट नहीं दिया किसी ने, और जिन्होंने नहीं दिया है वो उन्होंने कोई, उनको ज़रूरत भी नहीं है कि वो मुझे कुछ बताएं। और बहुत इस बात का मुझे अफसोस होता है कभी कभी कि आप लोगों का ये बिहेवियर जो है ना, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है बिल्कुल भी, कि बगैर कोई वजह बताए, बगैर कोई रीजन दिए बहुत आराम से आप बैठ जाते हैं और टेस्ट भी नहीं दिया। मतलब कोई अहमियत नहीं थी ना, इसका मतलब है इस बात की कोई अहमियत नहीं थी कि उस्ताद ने आपको कोई काम आपको कहा है और आपको उसको करना जरूरी है। इससे परे होकर, इससे मावरा होकर कि आपका फायदा है या नहीं है। अगर मैं आपसे कोई काम कहूँ तो आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि आप वो काम ना करें बगैर किसी जवाब के, और मुझे बताए बगैर। आपकी मर्जी की तो क्लास नहीं है ना, ये है, ये अहद है ना आपका हमसे कि आप इस क्लास की पाबंद होंगी, इसके औकात कार की पाबंद होंगी। जब आप 1 घंटा जो आपने इस क्लास का टाइम दिया है, जो इस 1 घंटे में आप अपनी फीसों की अदायगी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, फीसों को एक तरफ फिट कर दें, चले अगर हम इस बात को एक तरफ भी डाल दें, फिर भी आप खर्च तो कर रहे हैं ना, आपका माल भी जा रहा है, आपका वक्त भी लग रहा है, आपका एक कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को आप पूरा नहीं कर रहे, तो ये गलत बात है या नहीं है? ठीक है, चले, कुछ तालबात की मजबूरी है कि वो क्लास में नहीं आ सकती, उन्होंने मुझसे परमिशन ली हुई है बाकायदा, उनका मुझे पता है कि वो नहीं आ सकती, कोई जॉब करती है, किसी के ससुराल का या किसी के घर का कोई इशू है, कुछ भी जो भी मसाइल है मुझे पता है। बहुत सारी ऐसी हैं जो एज ए लिसनर क्लास में मौजूद लाजमी होती हैं, उनके घरों में भी काम चल रहे होते हैं, मगर मुझे पता है कि मैं अगर उनको कॉल करूंगी, उनसे कोई सवाल करूंगी तो ये शायद वो बिजी हों और वो जवाब ना दे सकें। तो इतनी रियायत तो हम भी आपके साथ कर रहे होते हैं ना, या नहीं करते? या आप लोगों को कभी ऐसा लगा है कि मैं कोई रियायत कभी नहीं करती आप लोगों के साथ, और बस मेरे डंडे चलते रहते हैं और मैं आप लोगों के साथ बहुत जबर के साथ पढ़ा रही हूँ आप लोगों को? मेरा ख्याल है हमारा तो एक माहौल बना हुआ है, हम बहुत कोऑपरेट करके आप लोगों के साथ अच्छे रवैये के साथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बार बार टेस्ट लेना जरूरी इसीलिए होता है आपकी दोहराई हो, आपका फायदा है। बाकी आप लोग समझदार हैं इस बात के लिए, और अल्लाह ताला की आयत यहाँ मौजूद है कि वह
تو یہ سوال جواب اگر ہم آپ سے نہ بھی کریں نا تو آپ اس بات کے اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے کہ آپ سے کوئی کام کہا گیا آپ نے کیوں نہیں کیا جبکہ آپ نے اس کا کمٹمنٹ کیا تھا. اس کلاس میں ایڈمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلاس میں ایڈمیشن کا مطلب ہے کہ کلاس میں جو رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو فالو کرنے, آپ اس سے ایگری کرتی ہیں جبھی آپ کلاس میں آتی ہیں نا, یا نہیں؟ 5 سال بعد جو ہے وہ اب جو بیچ میں اسٹارٹنگ میں نہیں آئی اب داخلہ ہو رہا ہے, تو جو بیچ میں داخلہ لے رہی ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں مشکلات تو ہوں گی. 2 مہینے کے جو کام پڑ چکے, جو طالبات پچھلی چیزیں پڑھ چکی ہیں وہ اب ہم نے نہیں پڑھی ہیں, مشکل تو پیش آئے گی لازماً. تو وہ جو مشکل ہے اس سے کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے گا, ان چیزوں کو لے کے ظاہر دقت تو ہوگی, مشکل تو ہوگی, تو تھوڑا وقت مینیج کرنا ہوگا, تھوڑی مشکلات تو آئیں گی اور ان کو سہنا ہی ہے یہ کمٹمنٹ آپ کا. جب یہاں آپ نے کہا جی مجھے لینا ہے پھر بھی داخلہ, اس کے باوجود اس کے کلاس شروع ہوئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے. پھر آپ 2 دن کے بعد مجھے میسج کرتی ہیں کہ ہم سے پڑھا نہیں جا رہا, ہمیں یاد نہیں ہو رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, اور اب ہم گھر پہ غاریاں لگوا رہے ہیں یا کچھ بھی, کوئی بھی بہانہ ہو. تو یہ غلط بات ہے. اپنے عہدوں کو نبھانا سیکھیں. اور یہاں بھی جو میں کہتی ہوں وہ ایک حکم ہوتا ہے, آپ سے میں التجائیں ہرگز بھی نہیں کر رہی ہوتی ہوں. اگر نرمی ہم پیش آتے ہیں نرمی سے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کی مرضی ہو وہی آپ کریں گے. اگلی کلاس میں تشریف لے آئیے.